So, have you read any news regarding finance today? Business Standard not published Sir, today, but as you have read yes, any. sir, I read the economic times, but I got only few articles related to business and finance. One of them was Trump is likely to decrease the tariff on laptop, mobile phone, and the chipset. And another is related to the failure of UPI. Yesterday, the UPI payment, the UPI apps has been down. But yes, sir, only two articles I have read related to finance. Okay. Let us go ahead with uh, what is UPI? Sir, UPI is Unified Payment Interface, which is the uh, online payment system of India. Who regulate UPI? Sir, uh, NPCI, National Payment Corporation of India, is regulate the UPI. Who owns NPCI? Sir, it is owned by the RBI and Yes Bank. Yes Bank? Yes, sir. I think it has been established by the collaboration of RBI and Yes Bank. Who told you so? But I think I have read somewhere. Where? So, NPCI established by RBI and in association with Banks Association of India. Okay, sir. It is not Yes Bank or any particular specific bank. This is not that much big. Any bank can come and establish whole payment infrastructure thing that is NPCI. No one can except RBI. Yes, sir. With bank collaboration association of bank. You should read in the PDF now I have given. There is written everything. Yes, sir. By the way, we are going in depth for this information in the later stages of this video. So let us move on to today's topic. Yes, sir. So, sir, today's topic is electric vehicle and renewable energy. So, sir, renewable energy is that energy which can be regenerated or restored after use, or we can say it is available in unlimited quantity. So, sir, in the 21st century, we have two major issues in front of us. The first is the burden over our non-renewable energy sources, and another is related to pollution. The pollution is being increased day by day. So we can say adoption of renewable energy can be a better option for us. Uh, Sir, currently the uh, contribution of renewable energy in total energy consumption of India is around 20%. Uh, and sir, the adoption of electric vehicle can be a major step toward this, since we are the largest population of the world, and the vehicles, our traditional vehicles, is the major portion of is generated major portion of the pollution. So we can replace them with the electric vehicles. Uh, and sir, India is working on it currently, but the growth is very slow. Since uh, we can solve the problem of pollution by replacing the electric vehicle with the traditional vehicle with the electric vehicle, and also we can decrease our dependency on the crude oil import, since we are currently importing the major portion of the world's crude oil. Like, we are the world's biggest importer of crude oil, so we can decrease the dependency on the crude oil. So uh, electric vehicle is a
can be decreased the sufficient amount of pollution in India. If we conclude the things, so renewable energies need of time, and since pollution is increasing day by day, and the coal and petroleum reserves are also overburdened, so the future will be of AI. The future will be of renewable energy, and we should take some big decision on it. Yes, sir, that's it. So what are the types of renewable energy? Can you explain three top types? Yes, sir. There are many types of renewable energy like wind energy, solar energy, biomass energy. Sir, solar energy and biomass energy are the major portion currently in India of renewable energy. So how Like biomass our energy is being generated? Can you explain? Yes, sir. Biomass energy is generated through the agriculture, agriculture and organic waste, which is available in abundant quantity since agriculture is a major sector in India. What is main product of biomass energy and byproduct? Sir, the main product of biomass energy is biomass briquetting, biogas, ethanol. In biogas, what is main product? Which gas is main? Methane gas is main product, sir. How much percentage methane? Sir, I am not sure about it, but around 40 to 50%. So see, we have gone through the series of our lectures during the PI subtopic wise PI. We have read like name based question, location based question, school to graduation to this banking sector. That's all we have concluded. But now there is a one important line is graduation specific question. So therefore that the graduation specific question will be your responsibility. Means what? You have to read all the graduation specific question in the sense. For example, in graduation, you have only one important subject. Anything like strength of material, farm machinery, like this subject. Any subject you pick up, make that very your strong area, and just read about it more and more. Yes, sir. So whenever you are going to mention that I have done BTech Agriculture Engineering from this college, having specialization in farm machinery, then stop at that point, getting this thing. So that the panelists will Yes, sir. focus on the question of the farm machinery itself. Do reading about farm machinery more and more, so that you will be familiar with the farm machinery questions, topics, subtopics of the same. So like this, you can Yes, go sir. ahead. This is another technique. Now after this, only one question left. That is why NIBM. When you will add all the questions and answer whatever I have told, this will make a proper PI. Proper PI script means question versus answers. Throw a question, give the answer. Throw a question, give the answer like this. Not more than that, they are going to ask, means the question will be same. Now another question will come out of your answer. Whatever answer you will give, from that they will ask question. Getting this thing. Otherwise, these set of questions will fix. Yes, sir. So you please read about your subject. Make one subject very special. That is a very strengthable subject, and work on it. Yes, sir. Next class, we will read about why NIBM, which is a very most important question. But the moment you will give good answer for this, you will get to know that this should be the good answer, and panelists will choose that answer as a very base level to select you. You know, because why NIBM Yes. will try to explore you that are you really working for the NIBM? Are you really interested in it?
That feeling we have to pass away. So let us go with today's class, and let me know if my screen is. Yes, sir. It is visible. So we have read on bonds. So there are some types of bonds. Bonds, you know what are these bonds? I am a company. I want money. I will issue the bond. You will give me money. After 1 year, you will come back to me. You will give my bond back, and you will take your principal back with interest. If that bond has been issued on discount, that will be called zero coupon bond. Just like treasury bills, T-bills. Getting this thing? Yes, sir. Now there are more types of bonds like the corporate bonds, government bonds. तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या होता है, जो कंपनी इशू करती है. गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो गवर्नमेंट इशू करते हैं. नेक्स्ट इज कन्वर्टिबल बॉन्ड. कन्वर्टिबल बॉन्ड मतलब क्या? कन्वर्टिबल बॉन्ड मतलब मैं एक बॉन्ड इशू करूंगा, कल को अगर मैं उसको बोलता हूँ ये कन्वर्टिबल बॉन्ड है, तो वो जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड की अमाउंट इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर, मेरी कंपनी के जितने, मान लो 2 शेयर की वैल्यू 2 रुपए है, और मैंने बॉन्ड 2 रुपए के ही जारी किए हैं, आपको 2 रुपए के बॉन्ड मैंने दिए हैं, और मेरे पास अभी पैसे नहीं है वो देने के लिए, तो आप क्या करोगे कि भाई साहब पैसे मत दो मेरे को, आप अपनी कंपनी के 2% शेयर दे दो. यानी इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर यू कैन गिव, सो दैट इज कन्वर्ट, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे वो शेयर में. नेक्स्ट इज मसाला बॉन्ड. मसाला बॉन्ड इज व्हाट? मसाला, जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये कोई तो इंडियन बॉन्ड है. मसाला बॉन्ड इज हमेशा इंडियन बॉन्ड, जो कि फॉरेन में लॉन्च किया गया है. गेटिंग दिस थिंग? मतलब आप Yes, sir. आउट ऑफ इंडिया जाओ और भारत का मसाला दो उधर, मतलब क्या, बॉन्ड, भारत का बॉन्ड आउट ऑफ इंडिया जाके किसी यूएसए में जाके वहां के इन्वेस्टर को बोलो कि भाई साहब ये लो इंडिया का बॉन्ड रखो, पैसा मेरे को दो इसका. तो हम इसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड. ग्रीन बॉन्ड, जैसा कि नाम से क्लियर है कि ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनसे जो मनी रेज की जाती है वो यूज की जाती है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए. ग्रीनरी, ग्रीन बॉन्ड, उसको बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड. व्हाट इज कन्वर्टिबल बॉन्ड? Sir, convertible bond is the bond that can be converted in the share if the borrower is refused to give the money. Like the borrower is not capable to give the money, then the bond can be converted into share of the company. नेक्स्ट इज डिबेंचर. डिबेंचर क्या होता है? सेम होता है बॉन्ड के जैसे, लेकिन बॉन्ड लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी होता है, लेकिन जो डिबेंचर होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है. और इसमें दो चीजें होती है, जो डिबेंचर होता है ना, वो हमेशा कॉर्पोरेट लॉन्च करता है, और अगर वही डिबेंचर गवर्नमेंट इशू करती है तो उसको हम बॉन्ड बोल देते हैं. मतलब डिबेंचर इज बॉन्ड, डिबेंचर इज बॉन्ड फॉर गवर्नमेंट, फॉर कॉर्पोरेट इट इज डिबेंचर. गेटिंग दिस थिंग? Yes, sir. सिंपल भाषा में मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूं, अगर मैं गवर्नमेंट हूं तो मेरा बॉन्ड बॉन्ड कहलाएगा, अगर मैं कॉर्पोरेट हूं तो मेरा बॉन्ड ही डिबेंचर कहलाएगा. इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शेयर इन्वेस्टमेंट होता है. सेम थिंग. डिविडेंड क्या होता है? अभी डिविडेंड ये होता है कि मैं अपनी कंपनी खोला और आप उसमें कुछ शेयर होल्डर है 50% के, मैं 50% का शेयर होल्डर हूँ, आप 50% शेयर होल्डर. 1 साल बाद उस कंपनी ने ऑपरेशन किया और 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट किया. 1 लाख करोड़ में से मैं ये समझा कि 10,000 करोड़ ऐसे बच रहे हैं उसमें से कि हम ये बांट सकते हैं किसी को. यानी
बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट मैंने कंपनी में लगा दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और मशीनरी खरीदी है। लेकिन जो 10,000 करोड़ बचे हैं, वो मैंने ये सोचा कि हम किस शेयर होल्डर को बांट दें। तो आप है शेयर होल्डर, मैं हूँ शेयर होल्डर, तो हम 5-5 हजार करोड़ रख लेंगे। ये होता है डिविडेंड। गेटिंग दिस थिंग। यस सर। जो प्रॉफिट हुआ उसमें से पहले मैं ये निकालूंगा, क्या मेरा कुछ प्लान है क्या इस प्रॉफिट से कुछ पैसे लेके मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूं, है ना, मैं कुछ नई इंटिटी जोड़ूं अपनी कंपनी में, नया लाइन जोड़ूं, नया बिजनेस करूं। पहले मैं वो करूंगा। अगर मैंने वो कर लिया, फिर भी कुछ पैसा बच रहा है उस प्रॉफिट में, वो मैं बांट दूंगा शेयर होल्डर्स। इसको बोलते हैं डिविडेंड। आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं, जो भी आप देखते होंगे, जो शेयर मार्केट में जो भी शेयर ट्रेड करते हैं, वो क्या होते हैं, वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं। गेटिंग दिस थिंग। यस सर। फिर एक आता है, एक होता है शेयर होल्डर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जैसा कि नाम से लग रहा है कि प्रेफरेंस दी जाएगी इसको। समझिए, एक कंपनी जिसमें आप शेयर होल्डर है, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और कल को पता चल रहा है कि कंपनी का ऑपरेशन सही नहीं चल रहा है, कंपनी डूबने वाली है, कंपनी डूब चुकी है। अब क्या होगा, अब जितना भी कंपनी के पास पैसा है किसको जाएगा? पहले मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी मुझको। मुझके मेरे हिस्से से जो भी बचेगा वो आपको मिलेगा। गेटिंग दिस थिंग। यस तो सर। प्रेफरेंस दे रहे हैं हम। दूसरी चीज ये होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, इनके जो डिविडेंड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। सर एक डाउट है इसमें। यस। जैसे सर किसी कंपनी की करंट वैल्यू 100 रुपये है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो उसका उसमें 30 रुपये का शेयर है। बट सर कुछ टाइम बाद कंपनी की वैल्यू 50 रुपये हो गई, तो सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इस केस में भी 30 रुपये ही मिलेंगे? नहीं, प्रेफरेंस शेयर तीन पर होल्डर के वो कुछ 30%। रूल्स होते हैं कि कितना पहले से फिक्स डिविडेंड होता है। अब 50 रुपए हो गई है, और समझो कंपनी की वैल्यू 50 रुपए हो गई, उसके पास पहले 30 रुपए का शेयर था, तो वो शेयर कम हाँ। हुआ ना, 50 रुपए तक हुई है, उसको 30% शेयर पंद्रह रहेगा रुपए सर वो। मिलेगा। यस सर। ये होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनका और एक रूल होता है कि इनके जो डिविडेंड होते हैं वो फिक्स होते हैं। समझो आप नॉर्मल शेयर होल्डर हो, और कल जाके मैंने ऑपरेशन किया अपने कंपनी में और देखा कि भाई घाटा हो गया मेरे को, तो घाटे में तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको, नॉर्मल शेयर होल्डर को। भाई जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो काहे का डिविडेंड? लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उसको फिक्स डिविडेंड रहता है कि 10% फिक्स डिविडेंड है आपका, मतलब प्रॉफिट हो लॉस हो, फिक्स आपको 10% मिलेगा। बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो तो भी 10 मिलेगा, एकदम लॉस में चलेगी कंपनी फिर भी 10 मिलेगा। फिक्स होता है प्रेफरेंस। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी मतलब आपने कहीं से लोन लिया है तो आप ओ कर रहे हैं उस चीजों को, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। वो कोई भी जो कंपनी होती है वो किसी भी चीज के लिए ले सकती है, अपने एम्प्लॉय की सैलरी देना है इसके लिए ले सकती है, अपने कंपनी का ऑपरेशन बढ़ाना है इसके लिए ले सकती है, कंपनी का मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है इसके लिए लोन ले सकती है। अब देखिए क्या होती है, दो चीजें होती हैं, फर्स्ट मैन स्कीम फॉर बैंक एंड एनबीएफसी। कल को आप बैंक गए, बोले कि भाई साहब मेरा पैसा निकाल दो, उसने मना कर दिया पैसा निकालने से, फिर क्या करेंगे आप? सर कंप्लेंट कर देंगे। कहाँ कंप्लेन कर? हेल्पलाइन नंबर पे सर, या वेबसाइट पे जो कंप्लेंट पोर्टल होता है उस पे। 30 दिन हो चुके हैं, आपने कंप्लेन भी कर दी थी, कुछ रिप्लाई नहीं आया, फिर
सर मतलब जैसे आरबीआई वगैरह के भी कुछ हेल्पलाइन पोर्टल होते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओम्बर्समैन। स्कीम। क्या बोलते हैं? ओम्बड्समैन स्कीम। तो 30 दिन के अंदर अगर आपकी कंप्लेन सॉल्व नहीं होती है बैंक के द्वारा, तो आप सीधा आरबीआई की इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। गेटिंग दिस थिंग? यस सर। तो ये ध्यान रखना है कि अगर 30 दिन के अंदर नहीं कुछ बैंक रिप्लाई करी, जैसे एसबीआई नहीं रिप्लाई कर, तो आप आरबीआई के पास जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। यस सर। सेम एनबीएफसी के लिए भी होता है। एनबीएफसी में क्या होता है एक्चुअली कि इसमें भी आप कंप्लेन करना चाहते हैं कि भाई साहब बहुत इंटरेस्ट ले रहा है मेरे से, है ना, इसकी कंप्लेन करना है, तो आरबीआई के ओम्बड्समैन में आप कंप्लेन कर सकते हैं। यस सर। इसमें भी वही चीज है कि पहले आपको उस एनबीएफसी के हेड ऑफिस में कंप्लेन करनी है। अगर वो रिजॉल्व नहीं हुई 30 दिन के अंदर, तो आप यहाँ पहुंच सकते यस सर। हैं। फिर होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आपको नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना है कोई तो सेविंग स्कीम होती है, इसको पीपीएफ बोलते हैं। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। अब यस आते हैं सर। मेन चीज, बैंक अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? बैंक अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक सेविंग बैंक होता है, एक करंट बैंक होता है। सेविंग बैंक वो अकाउंट्स होते हैं जो आप जैसे लोग या हम जैसे लोग खोलते हैं, यानी जिसमें हमको पैसे अपने बचा के रखना है, और कुछ ज्यादा फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन नहीं कि आज हम पैसा जमा किया कल निकाला, आज जमा किया कल निकाला। कल निकाला इन द सेंस 10-20 रुपए तो चलता है, ये नहीं कि 10,000 जमा किया 9,000 निकाल लिया, फिर 10 जमा किया फिर 9 निकाल लिया, है ना। गेटिंग दिस थिंग? इतने फ्रिक्वेंट यस ट्रांजेक्शन सर। नहीं होते, उसमें उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि टेलीविजन की शॉप है, जिनकी फैक्ट्रीज है, वो खोलते हैं इसको, क्योंकि इनको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को जो अकाउंट में डालना है और निकालना है एट द सेम टाइम। गेटिंग दिस थिंग? यस सर। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि पहला वाला जो सेविंग बैंक है उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जो दूसरा वाला है करेंट अकाउंट, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जैसे 3%, 3.5% जो भी इंटरेस्ट होगा वो। क्योंकि करंट अकाउंट में आपने आज पैसा डाला कल निकाल लिया, ऐसी फ्रीक्वेंसी रहती है, तो बैंक देती नहीं है इंटरेस्ट। ये दोनों जो आते हैं वो डिमांड डिपॉजिट के अंदर आते हैं। फिर एक होता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मतलब 1 साल से ऊपर के लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं। डिमांड डिपॉजिट में हम 1 साल से कम के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं। तो एक्चुअली टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, इसमें दो टाइप की, एफडी आपने कराया तो 1 साल से ऊपर कराओगे मिनिमम, आरडी आप कराओगे तो 1 साल से ऊपर। एफडी में एक मुश्त पैसा आप दोगे आज, और 1 साल बाद वो मेच्योर होगा। आरडी में क्या होगा, 100-100 रुपए हर महीने आप दोगे, वो 1 साल बाद मेच्योर होगा। गेटिंग दिस थिंग? यस सर। यहाँ आप डिफरेंस भी देख सकते हैं सेविंग करंट का जो भी लिखा हुआ है। इसमें रिस्ट्रिक्शन रहती है नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ विड्रॉल पे, कि भाई आप 25,000 रुपए भी एक बार में निकाल सकते हो, 1 लाख रुपए यूपीआई से मैक्सिमम वो कर सकते हो। बट करंट बैंक अकाउंट में क्या होता है कि आप जाओगे रसीद लेके, अपना रिसिप्ट, बैंक पासबुक लेके, तो आप 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी निकाल सकते हो। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितनी बार निकाल सकते हो ये भी कुछ नहीं है। एफडी, आपको केवल ये पता रखना है कि एफडी आरडी होती क्या है। यस सर। आरडी मतलब रिकरिंग, बार 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 मैं वही पैसा जमा करता हूँ, उसको बोलते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। ये हम पढ़ चुके हैं बीएसपीडी। वी हैव
हमने BSBDA पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं सर, PSPDA नहीं पढ़ा है। वी हैड। सेविंग बैंक डिपॉजिट इसमें अकाउंट। जीरो जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है। यस सर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देर इज नो, पढ़ा है सर। व्हेन देयर इज नो लिमिट ऑफ मिनिमम अमाउंट। कब पढ़ा है? सर, अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये क्या लिखा है? ये है। यस सर। तो ये सेम चीज यहाँ लिखी हुई है, और ये क्यों फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाया गया है, जिसमें वीकर सेक्शन जिसके पास 10 रुपए भी नहीं है वो भी अकाउंट। इसकी कुछ लिमिट्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। देयर इज अ नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ डिपॉजिट, लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा आप एक साल में नहीं रख सकते। मिनिमम मैक्सिमम बैलेंस इसमें 50,000 से ऊपर हो नहीं सकता है। और टोटल नंबर ऑफ डेबिट, तो ये आप रिसेंट रूल्स के हिसाब से अपडेट करिए इसको, so that you may be familiar with the recent rule, अगर कोई चेंजेस हुए हैं इसमें तो क्या हुए हैं, that like that. यस सर। Any doubt you have till now? नहीं सर। So from Swift we will read tomorrow. यस सर। So there is everything about payment. You see, NPCI, UPI, IMPS. We will read tomorrow. Any doubt you have till now? नहीं सर। No, if any doubt you can ask. Any doubt regarding your interview questions or anything else? यस सर। सर मैं वो HR क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे व्हाई यू वांट टू डू MBA आफ्टर बीटेक एग्रीकल्चर। सो सर उसमें उसको स्पेसिफिक बनाना है, जैसे कि कुछ मॉडल आंसर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ करूँ, या मतलब कुछ खुद का ही होना चाहिए पूरा पर्सनली इसमें। I will tell. I will tell you. Don't worry regarding this. As I had told ठीक है। before enrollment that there would be 3 mock PI sessions. पहले PI सेशन पे जो भी हमने तोड़ तोड़ के क्वेश्चन दिए हैं उनको एक साथ पहले बोला जाएगा। दूसरे PI सेशन में जो आपने गलतियां की पहला PI सेशन में वो रेक्टिफाई किए जाएंगे, और थर्ड PI सेशन में HR क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा, और उन क्वेश्चंस का भी आंसर किया जाएगा जो आपको पता नहीं है क्वेश्चन के आंसर कैसे करना है, उसका आंसर क्या दें वो हम बताएंगे। यस सर। दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक्स फॉर। थैंक यू सर।